नमस्कार, आदाब। इस बुलेटिन में एक बार फिर आपका स्वागत है। भारत और मॉरिशस के बीच के संबंध समय के साथ और मैत्रीपूर्ण और घनिष्ठ हो रहे हैं और नए आयाम तक पहुंच रहे हैं। ये बात प्रधानमंत्री प्रवीण जगन्नाथ और भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर दोनों ने कही। दोनों महानुभावों के हाथों आज सुबह एबेन में भारतीय उच्चायोग के नए कार्यालय का उद्घाटन हुआ। क्लूडेट जोफ्वा, आस्था गोविंद चितामन। 1.5 हेक्टेयर के क्षेत्रफल पर एबेन के वित्तीय केंद्र में भारत के उच्चायोग का नया भवन पाया जाता है। ये इमारत आधुनिक और पर्यावरण प्रिय है, जो सौर ऊर्जा से चलने वाले पैनल्स के जरिए अपने उपभोग की बिजली पैदा करती है। यहाँ पर एक बिजनेस सेंटर, मल्टीपर्पज हॉल और योगा एवं वेलनेस सेंटर भी पाया जाता है। मॉरिशस में भारत के उच्चायोग के इस नए कार्यालय का उद्घाटन भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और प्रधानमंत्री प्रवीण जगन्नाथ द्वारा किया गया। यादगार पट के अनावरण से पहले अंतर धार्मिक प्रार्थनाएं भी की गई। प्रधानमंत्री प्रवीण जगन्नाथ ने कहा कि ये नई इमारत भारत और मॉरिशस के पूर्व, वर्तमान एवं भविष्य के संबंधों को रेखांकित करती है। ऐसे रिश्ते जो समय के साथ नई बुलंदियों को छू रहे हैं। We are really impressed by the architecture, by the facilities and the state-of-the-art technology that has been used, and that reflects also what India stands for today. There could not have been a better place for the High Commission to be situated in this magnificent strategic location of Eben, which is next to Sri Atal Bihari Vajpayee Tower. And that will always remind us of the first intelligent building that was built in Mauritius with the support of a line of credit from the government of India to develop our ICT sector. I don't need to go in depth to enumerate concretely the number of projects that has been undertaken in Mauritius thanks to the support of the government of India. We are always grateful for that special relationship, and I can say that this relationship is growing day by day to greater heights. And the visit of Dr. Jaishankar is another stepping stone in this relationship going further and further. As Prime Minister Shri Narendra Modi said, we have a super special relationship. But this Chancery building not only connects us with the past, but it is important for the present and it is critical for the future. डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों की घनिष्ठ मित्रता का प्रमाण मॉरिशस में भारतीय उच्चायोग का ये नया भवन है। I truly believe that our relationship today is at its best ever. And between India and Mauritius, that's a very big statement to make, given our history, given our closeness. We have done so much in the last few years, which is visibly expressed partly in the projects that we see around us, but I think in the greater closeness that we have between our societies, between our polities, between our policies.
And I can only say that the challenges of COVID have brought us even closer. Now, given how much the relationship has transformed in recent years, I think it was only right that the institutional face of India also underwent a facelift. And we had a transformation which really reflected our contemporary relationship. And as I looked at this building, walked around, I truly believe that this is really a message that we would like to send to people here, reflection of our modernity, of our capability, but also of our connection of our past, as you put it. And secondly, I was also very impressed that it's actually a result of such a strong partnership with the capabilities and creativity of Mauritius. And actually, it is this partnership that has been responsible even for the success of our many projects. So to me, this is just one more proof that we have it in us to take our relationship to a new level. प्रधानमंत्री प्रवीण जगन्नाथ, भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, मॉरिशस के विदेश मंत्री अलान गानू ने अतिथि पुस्तिका पर हस्ताक्षर किए। इस दिन को यादगार बनाने के लिए तस्वीरें खींची गईं। इस साल के अक्टूबर महीने तक दागोचिया में 656 सामाजिक आवास बनकर तैयार हो जाएंगे। इस परियोजना की लागत $40 मिलियन से ज़्यादा की बताई जाती है, जिसके लिए भारतीय सरकार की तरफ से ग्रांट प्राप्त हुआ है। मॉरिशस के दौरे पर आए हुए भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर ने डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर स्टीवन ओबिगाडू के साथ कार्यों का जायजा लेने के लिए स्थल का दौरा किया। डॉक्टर जयशंकर ने इस बात की संतुष्टि जताई कि भारतीय विदेशी नीतियों के जरिए कार्य पूरी किए गए हैं। माधवी जगन्नाथ, विधिमासी विवरण। दागोचिया में 28 एकड़ जमीन पर एनएचडीसी की आवास परियोजना को लेकर जोरों से काम चल रहा है। इस परियोजना के लिए मॉरिशस को भारत की ओर से करीब $20 मिलियन की आर्थिक मदद प्राप्त हुई है। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर स्टीवन ओबिगाडू के साथ स्थिति का जायजा लिया। समुदायों को राहत पहुंचाने के लिए एस जयशंकर ने भारतीय विदेश नीति के तहत साकार की जाने वाली परियोजनाओं को लेकर अपनी संतुष्टि जताई। उन्होंने कहा, I must say I'm truly impressed by what I see. I do compliment the government of Mauritius because मॉरिशस सरकार द्वारा किए जा रहे कार्यों से मैं बहुत संतुष्ट हूँ और इसके लिए मैं मॉरिशस की सरकार को धन्यवाद देता हूँ। पिछले साल हम सभी के लिए एक चुनौतीपूर्ण साल रहा है। कम समय में परियोजनाओं को साकार किया जा रहा है और ये दाद देने वाली बात है। जब अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी एक मजबूत चीज में बदलती है तो बहुत अच्छा लगता है। I think that's a very good feeling. डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर स्टीवन ओबिगाडू ने कहा कि मोताबा में इसी प्रकार की एक परियोजना चलाई जा रही है। प्रत्येक ब्लॉक में 4 आवास इकाइयां शामिल हैं और हर एक में खेती-बाड़ी करने की जगह है। इस बृहद परियोजना में एक कम्युनिटी सेंटर भी शामिल है। डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर स्टीवन ओबिगाडू बताते हैं, भारत द्वारा प्राप्त आर्थिक मदद की बदौलत दागोचिया और मोताबा में ये परियोजनाएं चलाई जा रही हैं। इससे मॉरिशस के प्रति भारत की सॉलिडारिटी और मदद दर्शाती हैं। इस तरह की परियोजनाएं दुर्लभ हैं। सभी केंद्रों में एक कमर्शियल स्पेस का अनुमान लगाया जा रहा है। साथ ही बच्चों के लिए खेलने की जगह और स्पोर्ट्स करने की भी व्यवस्था कर रहे हैं। Nous peut aussi prévoir comment dans tout ban centre maintenant ban l'espace commercial, nous peut aussi prévoir ban l'espace vert pour ban enfants capables de jouer, nous peut prévoir aussi ban l'espace que du monde capable marcher, faire un jogging pour sport. दागोचिया में ये आवास परियोजना उन परिवारों के लिए है जिनका मासिक वेतन 30,000 रुपए से ज्यादा नहीं है। इसके लिए कार्य अगस्त 2018 में शुरू हुए थे, जो इस साल के अक्टूबर महीने में समाप्त होने हैं। भारतीय विदेश मंत्री ने इस बात की खुशी जताई है कि भारत की साझेदारी के साथ मॉरिशस में साकार की गई मेट्रो एक्सप्रेस परियोजना ने मॉरिशस जनता के आम जीवन में सकारात्मक सुधार लाया है। डॉक्टर जयशंकर ने आज दिन के दौरान रोजिल से पोर्ट लुई का सफर मेट्रो में तय किया। उनके साथ मंत्री अलान गानू भी मौजूद रहे। उन्होंने ऐलान किया कि क्यूबिप से पोर्ट लुई के बीच की मेट्रो लाइन कार्यरत हो जाने के बाद एक दिन में करीब 53,000 लोगों के इससे सफर
करने का अनुमान लगाया जा रहा है। वालेरी कालियास था, गोविंद चितामन। भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने मेट्रो में ब्राजील से पोर्टली का सफर तय किया। उनके साथ मंत्री अलान गानू, मॉरिशस में भारत की उच्चायुक्त श्रीमती नंदिनी सिंघला तथा अन्य महानुभाव भी गए हुए थे। ट्रेन 12:41 पर रवाना हुई। 20 मिनट की इस यात्रा में भारतीय विदेश मंत्री को रास्ते में आने वाली जगहों के इतिहास को जानने का और प्रकृति को निहारने का अवसर मिला। 1:03 पर डेलीगेशन विक्टोरिया स्टेशन उतरा। भारतीय विदेश मंत्री ने कहा कि उन्हें खुशी है कि भारत ने मॉरिशनों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए बड़ा योगदान दिया है। Just want to say it was a great ride. Really happy to see this project. I was told that it's the fastest light rail project ever done in less than 2 years. And you know, I can see how convenient it is, what a difference it must be making to the lives of people, and I can say we were privileged to be part of it. So really a very good achievement, Minister. I compliment you, and I'm so glad that our partnership has made this difference. मंत्री अलान गानू ने मेट्रो एक्सप्रेस की परियोजना को हकीकत बनाने के लिए भारत की मदद के वास्ते आभार प्रकट किया। Once more to thank the government of the Republic of India, the Prime Minister Shri Narendra Modi, for the help, the support that has been provided to us to make this cherished dream of having a metro project in Mauritius become a reality. We hope to finish the project by the end of next year, and where per day 53,000 people will be traveling from Port Reitz to Phuket. अब तक 3.3 मिलियन यात्रियों ने मेट्रो से सफर कर लिया है। मेट्रो के खास सफर के बाद भारतीय विदेश मंत्री और उनका डेलीगेशन मॉरिशन विदेश मंत्री अलान गानू के मेहमान रहे। उनके लिए पोर्टली के लुलाबुदोने होटल में लंच का आयोजन हुआ था। और प्रधानमंत्री प्रवीण जगन्नाथ और उनकी पत्नी श्रीमती कोबिता जगन्नाथ ने कल फ्लिक ऑन फ्लैग के शुगर बीच होटल में डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और उनके डेलीगेशन के सम्मान में एक रात्रि भोज दिया। मौके पर कई सरकारी सदस्य और अन्य महानुभाव उपस्थित रहे।